हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन सी पी माइनस सी वी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो हम सी पी माइनस सी वी का रिलेशनशिप फाइंड आउट करने जा रहे हैं एंड इस फॉर्मूले को मेयर्स रिलेशन या मेयर्स फॉर्मूला भी कहा जाता है। सो सबसे पहले से स्टार्ट करने से पहले वी जस्ट कंसीडर एन आइडियल गैस। हम पहले एक आइडियल गैस कंसीडर करेंगे and having initial conditions such as having initial conditions, जो हमारे पास initial condition है such that let P is the pressure and V is the volume and T be the temperature of the gas. And students, ये जो gas है it is being enclosed in a container. It is being enclosed in a container and provided with a frictionless piston there. सो नाउ हमें फाइंड आउट करना है सी पी माइनस सी वी। सो स्टूडेंट्स, ये जो सी पी है ये है मोलर स्पेसिफिक हीट। इट इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ अ गैस थ्रू यूनिट डिग्री एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। एंड सी वी का मतलब है इट इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू change the temperature of 1 gram mole of a gas through unit degree when volume is kept constant. So हमने एक आइडियल गैस लिया है जिसका इनिशियल कंडीशंस है PVT, P is the initial pressure, V is the initial volume and T is the temperature and it is enclosed in a container. एक कंटेनर के अंदर हम इसे enclose करके रखा है. So initially like starting में हम एक और चीज़ यहाँ पर consider करेंगे. Initially let us consider that वॉल्यूम इज़ केप्ट कांस्टेंट। वॉल्यूम इज़ केप्ट कांस्टेंट। हमने इनिशियली क्या किया कि हमने वॉल्यूम जो है उसको कांस्टेंट कर दिया। लेट्स सपोज वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट एंड हम क्या करेंगे, अब इस गैस को कुछ हीट सप्लाई करेंगे सच दैट इसका जो टेम्परेचर है चेंजेस बाय एन अमाउंट डी टी। हमने इनिशियली गैस को कंटेन किया और उसका वॉल्यूम जो है वो हमने कांस्टेंट रखा है, बट नाउ वी आर गोइंग टू हीट द गैस सच दैट इट्स टेम्परेचर विल चेंज बाय एन अमाउंट डी टी। हम उसे हीट करेंगे कि जिससे उसका जो टेम्परेचर है वो डी टी अमाउंट से चेंज कर जाए। सो इस प्रोसेस में जो हीट रिक्वायर्ड होगा, सो हियर द हीट रिक्वायर्ड or we can say that heat supplied to gas to change the temperature through dt amount is to change the temperature through dt amount is ये heat का relationship है students, that dq, let's suppose we have given the heat dq such that we are going to change the temperature of that gas that is kept at constant volume. So यहाँ पर जो molar specific heat आएगा it is Cv because we are keeping volume as constant. So molar specific heat is Cv. So we are taking that 1 gram mole of a gas and we want to change its temperature by amount Tt. So to change the temperature by this amount, we need this amount of heat. Means we can say that we supply that heat, that is dq is equal to Cv1 dt, or we can write it as Cv dt. So this is the heat that has been supplied to that gas that is contained in a container and its volume is kept constant. So we give that heat and volume is constant and that entire heat basically changes the temperature of the gas. Now we apply the first law of thermodynamics on this equation, as we know that dq is equal to du plus dw. So that is the statement of first law of thermodynamics. So this is first law of thermodynamics. So as we know that dw is equal to pdv, but there is no change of volume here. हमने volume को constant रखा है. So here dv is equal to 0. So therefore no work is done. So dw comes out to be 0 here. So we use this case in this equation because यहाँ पर volume हमने constant रखा है. So work जो है अपने पास 0 है. So we are going to apply the first law on this current situation. So इस हिसाब से हम dq को लिख सकते हैं dq is equal to du plus 0 because volume is constant here. So dq का expression हमारे पास ऊपर आ गया है, it is cv dt. So this is equal to
डी यू, तो इसे हम नोट कर लेंगे यहाँ पर। सो सी वी डी टी जो है वो डी यू के इक्वलेंट, डी यू के बराबर हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट। सो दिस इज इक्वेशन सेकेंड देयर। तो सबसे पहले हमने सिंपली गैस लिया है, आइडियल गैस, इसकी इनिशियल कंडीशंस ये थी, और उसे हमने हीट किया, कुछ हीट सप्लाई किया सच दैट इट्स टेम्परेचर चेंजेस बाय amount delta T. We have taken that 1 gram mole of a gas and like dq is equal to cv/dt. Then we apply that first law of thermodynamics. So according to first law, we are getting dq is equal to du plus 0 and cv/dt is equal to t. अगेन हम लेट सपोज फिर इनिशियल कंडीशन पे फिर से जाते हैं और अब दूसरी तरह से इस गैस को फिर से हीट करते हैं अपनी कंडीशंस को चेंज करके। सो नाउ वी नाउ द गैस, बेसिकली जो गैस है हमारे पास, नाउ द गैस be heated at constant pressure. Now we are keeping that pressure constant. So now the gas be heated from the initial conditions again, and but now in this case we are keeping the pressure constant. पहले हमने volume constant रखा था। Through the same range dt, through the same range dt. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमने क्या किया है कि गैस वही है, कंडीशंस वही है, बट नाउ वी आर अगेन चेंजिंग दैट टेम्परेचर dt मीन्स वी आर हीटिंग सच दैट द टेम्परेचर चेंजेस बाय द सेम अमाउंट, बट यहाँ पर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। सो हियर द हीट रिक्वायर्ड बेसिकली, सो हियर dq is written as Cp because we have kept pressure as constants. So heat required is Cp 1 into dt. So we can say that dq जो हमने दिया है हम इसे dq डैश लिखेंगे बिकॉज हमने पीछे dq लिखा है, वहाँ वॉल्यूम कैप्ट कांस्टेंट था और यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट हमने किया है, तो हम यहाँ पर अभी इसे सेम नहीं लिख सकते। अगर हम dq यहाँ लिख दिया है तो dq डैश हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। सो dq डैश इज इक्वल टू Cp dt। dt सेम इसलिए है क्योंकि हमने दोनों ही केसेस में जो टेम्परेचर चेंज किया है वो सेम अमाउंट से किया है, सो इसलिए हमने यहाँ पर dt रखा है। सो दिस इज सम इक्वेशन 3 देयर स्टूडेंट्स। एंड सिमिलरली जैसे हमने पीछे थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का यूज़ किया, यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे। सो यूजिंग फर्स्ट लॉ देयर, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का यूज़ करेंगे जो कि कुछ इस तरह से होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। सो यहाँ पर जो हमने हीट दिया है दैट इज बेसिकली Cp dt to change the temperature of the gas through the same amount dt, and this is basically du, and यहाँ पर हम du को du डैश से डिनोट करेंगे, पीछे हमने du डिनोट किया है। यहाँ पर है हमारे पास dw, यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, सॉरी गैस का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, सो यहाँ पर कुछ वर्क का एक्सप्रेशन भी आएगा, तो इसे मैं लिख लेता हूँ dw डैश। सो नाउ लेट्स सपोज दैट इन दिस प्रोसेस बेसिकली कुछ वर्क हुआ है, सो देयर विल बी सम चेंज इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। सो हम यहाँ पर डी डब्ल्यू डैश का जो है वो एक्सप्रेशन राइट कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज यहाँ पर जो है वॉल्यूम जो है मान लीजिए डी वी अमाउंट से चेंज हुआ है, सो डी डब्ल्यू डैश का एक्सप्रेशन आ जाएगा पी डी वी एस, प्रेशर इज कांस्टेंट देयर, सो आई कैन से दैट डी डब्ल्यू dash is equal to PdV. We give some heat to the gas, pressure is constant, but definitely volume will change there, so we give some heat to the system. So the heat was Cp dt, and let's suppose change in internal energy is du dash, and some work has been done here. So वो W का एक्सप्रेशन जो है वो आ गया हमारे पास PdV, so we can write Cp dt is equal to, यहाँ पर du dash है और यहाँ पर है PdV. सो नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि दोनों ही केसेस में जब हमने कंडीशन कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का रखा था, दोनों ही केसेस में हमने जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है, जो चेंज इन टेम्परेचर है, वो दोनों ही केसेस में dt है। एंड वी नो दैट इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर देयर, चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर जो है वो इंटरनल एनर्जी डिपेंड करेगा। दोनों ही केसेस में टेम्परेचर चेंज का अमाउंट सेम है, तो दोनों ही कंडीशंस में जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी का चेंज हुआ होगा वो सेम हुआ होगा, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। ऊपर वाले केस में भी आप देखेंगे हमने यहाँ भी dt अमाउंट से कुछ चेंज किया है, एंड ऊपर भी dt अमाउंट से टेम्परेचर चेंज किया है, हीट करने पे जो हुआ है चेंज। सो इन बोथ केसेस दैट चेंज इन टेम्परेचर इज dt, सो फॉर बोथ केसेस हम बोल सकते हैं, सो फॉर both cases du is same, means du and du dash are same।
तो हम यहाँ पर डी यू और डी यू डैश को एक दूसरे से इक्वेट कर सकते हैं। सो दिस इज डी यू डैश, और हम ऊपर देखेंगे अपनी इक्वेशन में कि हमारे पास डी यू की वैल्यू कितनी थी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे तो डी यू का जो वैल्यू है इक्वेशन 2 में, इट इज़ इक्वल टू सी वी डी टी। तो हम इसे लिख देंगे यहाँ पर, इट इज़ सी वी डी टी, because in the both cases temperature changes by the same amount and that internal energy is only depending on the temperature. So दोनों केसेस में जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है वो सेम होगा। सो इसलिए मैंने डी यू डैश को डी यू के बराबर लिखा। सो वी हैव सी वी डी टी, सो वी यूज दिस इन इक्वेशन 4 देयर। तो यहाँ से सी पी डी टी का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन रहा है, डी यू डैश की जगह लिखा जाएगा सी वी डी टी प्लस पी डी वी। So this is the expression there, or we can write Cp dt minus Cv dt and it is equal to P dV। अब हम यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, एज वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू आर टी देयर। सो ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है। So let's suppose we change the temperature and the volume get changed by the amount dV there, जो हमने यहाँ पर करके रखा है। आइडियल गैस इक्वेशन लगा रहे हैं हम यहाँ पर ऑन दैट केस, जो हमने सेकेंड केस लिया है। सो इट इज़ बिंग रिटन एज P, लेट्स सपोज वॉल्यूम चेंज बाय अमाउंट dV, so we can write P plus dV। we can also do it by differentiating both sides, and temperature जो हमने चेंज किया है, it is like dt amount। so for example temperature is being changed by dt amount and volume changed by dv amount। so इक्वेशन जो है आइडियल गैस इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। सो इट इज़ अगेन लाइक पी वी एंड पी डी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस आर डी टी, एंड दैट पी वी इज इक्वल टू आर टी। सो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। सो वी कैन राइट दैट पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी देयर, या सिंपली हम इसे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स करके भी इस एक्सप्रेशन को अचीव कर सकते हैं। सो वी जस्ट राइट ऑन द चेंज ऑफ टेम्परेचर बाय अमाउंट dt, the volume changes by dv there। so we just write v dv is equal to rt plus dt। we simplify that expression and get p dv is equal to r dt। so p dv is equal to r dt, so we use this relation again in the one equation। so यहाँ से हमारे पास cp minus cv, so dt हम कॉमन ले सकते हैं। so this is dt and p dv की जगह हम लिखेंगे r dt there। so ये dt से dt जो है वो कैंसिल हो जाएगा, and we have Cp minus Cv is equal to capital R, and that capital R is known as the gas constant। so this is that gas constant in that gas equation। so Cp minus Cv is equal to capital R। so I just hope आपको ये एक्सप्रेशन जो है वो समझ आया होगा। गैस कांस्टेंट की वैल्यू है 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। so this is the unit for that capital R। Cp is the molar specific heat at constant pressure and molar specific heat at constant volume। Cp is basically greater than the Cv because जब हम बात कर रहे हैं Cv का, Cv क्यों छोटा है Cp से? because students whenever जब Cp और Cv को देखें तो in the case of Cp, because here pressure is constant, so जो heat supply किया जा रहा है it is also changing the temperature and also doing some work there। दोनों ही केसेस में हम टेम्परेचर सेम अमाउंट से जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ Cp के केस में हमें एक तो टेम्परेचर गैस का dt से चेंज करना है और साथ में वहाँ पर कुछ वर्क भी हो रहा है। लेकिन Cv के केस में अगर हम देखें तो Cv इज कांस्टेंट वॉल्यूम, नो वर्क देयर। सो जो हीट हमें देने पड़ेगी dt चेंज करने के लिए सिर्फ उतना ही करना है, मीन्स आपको सिर्फ टेम्परेचर चेंज करना है dt अमाउंट से, उसी के लिए आपको हीट देना है। यहाँ पर आपको एक तो dt के लिए हीट भी देना है और साथ ही साथ में कुछ वर्क भी सिस्टम के अंदर होगा। सो बेसिकली जो हीट यूटिलाइजेशन है वो दो पार्ट्स में है और यहाँ पर जो हीट दी जा रही है उसे सिर्फ dt करना है। सो इसीलिए यहाँ पर हमें ज़्यादा हीट देने पड़ रही है। सो इसीलिए Cp इज ग्रेटर देन Cv बाय एन अमाउंट कैपिटल R। सो दिस इज द रिलेशन एंड दिस रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज द मेयर्स फार्मूला। इसे मेयर्स फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। सो आई जस्ट होप आपको ये एक्सप्रेशन समझ आया होगा। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।